Assalamualaikum. Lovely to meet you on a beautiful Saturday morning. What else could I asked for? I know it's a beautiful day today, actually. It is. And Yeah. what a lovely setting. Yeah, so we'll have our breakfast. बिल्कुल Yeah? सही है. हाँ. Perfect. और क्या लेना पहले देखो तुम. What do you recommend? मैं Been तो coming here राफे before? जो यहाँ खाता है वो है राफे टर्किश. आऊँगी पिक्चर्स दिखा दूँगी अच्छा. तो तुम्हें पता लगे. आज मैं सोच रही थी मैं स्क्रैम्बल्ड एग लूँ. मैं दो दफ़ा ये खा चुकी हूँ. चलो I'll try the smoked salmon then. है ना? ठीक है. Yeah, I think this would be fine. Yeah, perfect. Perfect. और कॉफ़ी टी कुछ ऐसी. I'll take latte. Latte. Can we have? Can we order? I think it's okay because I'm finishing training soon, so for me it's not that big of a deal. But I think it's been going on for a while. So. But what do you think about how things are at hospitals and in the It's field that you picked up? There's definitely over the last few years, definitely been difficult rotas. And then obviously the pay imbalance. It's all adds up, I guess. Yeah, it's a bit. Hospital doctors are probably a bit more stressed than GPs. The GP is a bit more flexible. और बताओ शबनम किस तरह तुम आजकल लंदन आए हुए हो? आजकल लंदन आई हुई हूँ. One of my daughter is here. अच्छा. And so we get to spend time with her. Oh yes. Lots of friends and enjoying the weather. Being a tourist. Every time you come to London, it's like being a tourist. हाँ, लेकिन it looks like कि ये तुम्हारा second home है. हाँ, it is. क्योंकि तुम It is. माशाल्लाह Yeah. बहुत चक्कर लगाए हैं. तो Yeah. मुझे तो बल्कि मैं इतना नई जगह देखी हैं जितनी तुमने देख ली होंगी बाहर से आके. But every time it's been now, the first time I came was when I was doing my medical degree. I came with my best friend. अच्छा. So it was a completely different experience, though young ladkiyan. हाँ. Then after that I came when I got married. My husband was here. मेडिकल डिग्री का यहाँ पे पढ़ी हो? नहीं मैंने पाकिस्तान से पढ़ के तो यहाँ पे. We came here for a holiday. Okay, अच्छा. So both of us came. तो young girls, so you can imagine. So it was a very different experience. Something that we would cherish all our lives. Of course. Then I came with my husband, and when I got married, we were in Guildford, Surrey में हम वहाँ थे. So I was there. I joined the university there. So a completely different experience again. Again, yes. Where my children were born here. Then I went back to Pakistan. Then coming back, every time. So it seems like a second home naturally. It is a second home, absolutely. That's excellent. मुझे भी यही होता है कि जिस तरह फ्रेंड्स आते हैं जब पाकिस्तान से तो ऐसे नहीं लगता कि वो पहली दफ़ा आए हैं और like हमें तो ऐसे लगता है कि जैसे here and we were friends like absolutely for and some of the friends are from the university time. So we've now traveled for almost 3 decades. Oh gosh, अच्छा. So travel करके किधर जाते हो? यूरोप में ज़्यादातर या? Actually, my last job was as a global director for an organization which works on promoting gender equity in the health workforce. हमारी जो health workforce है globally, वो 70% औरतें हैं. अच्छा. और उसमें जब हम देखते हैं leadership roles में, तो although there are 70%, तो 70% ही leadership में होनी चाहिए, लेकिन we see only 25%. अच्छा. So this particular organization works on promoting कि औरतों को भी equal chance मिले to advance in their career ladder. So I was working in as a global director, or very interestingly, they had 56 country chapters in 53 countries. Achha. And I was overseeing their operations. So that gave me a beautiful chance to go to even countries that I had not gone as a tourist. तो हम यूरोप भी फिरते हैं पाकिस्तान, लेकिन अफ्रीका देखा मैंने, और फिर on ground experiences, meeting their governments, meeting their civil society organizations, seeing कि वहाँ challenges क्या हैं और वहाँ पे कुछ चीज़ें वो बहुत
लिमिटेड रिसोर्सेज में बहुत अच्छी भी कर रहे हैं. So lot of lessons to learn as well. अच्छा अच्छा. So I think a lot of traveling that I did in the last जो 2-3 साल में was linked to that role that I was occupying. तो इतना कुछ करके तो must be ऐसा होगा कि you were taking back to your country lot of experience from different countries और इधर है ना? Absolutely. हमारे मुल्क के लिए भी मुझे यकीन है बहुत और ये वाइस वर्सा है. हाँ, दोनों बिल्कुल तरफ से. ठीक कह रहे हो क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस हम लेके आते हैं जो हम कहते हैं कि हम जाके रेप्लिकेट करें उन्हें. Exactly. और कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे होते हैं जो हमने बड़े सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किए होते हैं जो हम उनसे शेयर करते हैं. हाँ. कि ये चीज़ें जो आपका चैलेंज है हमें भी यही था और हमने क्या किया. और पाकिस्तान के हवाले से वो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि बीइंग अ लो मिडिल इनकम कंट्री, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, चैलेंजेस ज़्यादा हैं बहुत. हाँ. तो वो फिर इंटरेस्टिंग होता है हमारे कंपैरेटिव कंट्रीज के लिए कि अगर इन्होंने कर लिया और इसी तरह हम देखते हैं कि अगर इन्होंने कर लिया तो लेट्स गो बैक एंड सी इफ वी कैन आल्सो अडैप्ट इट एंड रोल इट आउट इन आवर कंट्रीज. तो पाकिस्तान में चैलेंजेस फील होते हैं जिस तरह लगता है कि जैसे वो नहीं है बात जो बाहर के मुल्कों में है. कुछ लगता है कि वहाँ के सियासत भी आप बीच में डाल सकते हो कि सियासी तौर पे किस तरह के वहाँ हालात हैं या यू कैन से कि चैलेंजेस तो आई फील आर एवरीवेयर. अच्छा. पाकिस्तान के हर कंट्री के, पाकिस्तान के, या हम यहाँ पे देख लें, एज यू सेड दिस इज अ सेकंड होम. सो ओवर द इयर्स आई सी अ लॉट ऑफ चैलेंजेस हियर एज वेल. इसी तरह पाकिस्तान में वी वर raised there, we went to my first medical school was there. So वहाँ के भी challenges and they become more pronounced जब वो economic, जब वो turmoils आते हैं क्योंकि being a low middle income country we get to face the brunt. फिर हमारा conflicts जो आपके regional conflicts भी आपको impact करते हैं, political unrest and we are इस वक्त हमारी democracy उतनी mature नहीं है. But then again I feel that there are lots of good things also happening which give you hope. A lot of talented young people coming up and bringing new ideas. So वो उसको देख के आप बड़े optimistic भी होते हैं. हाँ, और क्या. So I tend to see the half glass full and also and create my own sunshine. Oh yeah, of course. और यही अच्छी बात है कि half glass जो है उसको half glass full करना चाहिए. शबनम, जब आप इधर आई तो आपको यहाँ पर क्या कुछ किया आपने? मुझे ये पूछना चाहिए क्योंकि एज अ डॉक्टर यहाँ पर आकर काम करना या कुछ इस तरह अपने या कुछ भी जो भी आप लोग लेक्चर देते थे यहाँ के लोगों को. आई डिड माई फर्स्ट डिग्री जो मैंने की वो मेडिसिन की पाकिस्तान से. और दोनों मेरे बोथ माई पेरेंट्स दे आर बोथ डॉक्टर्स. अच्छा. सो नंबर आ गए. पेरेंट्स का वही तो नहीं था कि क्या बनना है बेटे. तो वो कहते हैं कि जी डॉक्टर. मुझे इतना उस वक्त इंटरेस्ट नहीं था मेडिसिन करने का. फॉर आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन. मेरे दोस्त एमबीए कर रहे थे. अच्छा अच्छा. पर मुझे मेडिसिन वो मोस्ट कम्पिटिटिव दाखिला हो गया और उन सबको हुआ कि हैं क्यों. सो उनको लगा कि माशाल्लाह यू वर इंटेलिजेंट इनफ कि आप उनको लगा मैं सही डिसीजन नहीं ले रही तो उन्होंने कहा नहीं मेडिसिन ही करनी है. सो आई डिड माय फर्स्ट डिग्री इन मेडिसिन. ठीक. फिर शादी के बाद मैं यहाँ आई तो हमने जहाँ घर लिया गिलफर्ड में उसके बिल्कुल पीछे सरे यूनिवर्सिटी थी. अच्छा. सो आई वेंट टू विजिट द यूनिवर्सिटी कि कोई प्रोग्राम करें. सो आई सॉ द ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ, आपको पता है एमबीए के स्कूल्स हमेशा सबसे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में. सो आई वॉकड इन एंड आई जस्ट थॉट कि आई हैव टू डू दिस. सो हस्बैंड को कन्विंस कर लिया एंड आई स्टार्टेड डूइंग माई एमबीए. अच्छा. सो उस वक्त, अब तो शायद कुछ अब भी बहुत कम लोग हैं जो मेडिसिन के बाद एमबीए की साइड पे जाते हैं, पर उस वक्त तो आई थिंक इट वाज वेरी रेयर. सो सबको बहुत अजीब लगा कि एमबीए और मेडिसिन के बाद exactly. और इस एज में अभी क्या जरूरत पड़ी. आई वाज ओनली 25 एट दैट टाइम. और जब मैंने फ्रेश ग्रेजुएट तो जब मैंने क्लास ज्वाइन की एग्जीक्यूटिव एमबीए की और मैं क्लास में गई तो एवरेज एज ग्रुप वाज 50 क्योंकि वो तो सीनियर लेवल पे आके एमबीए करते हैं. तो वो मुझे कहें, यहाँ के लोग मुझे कहें कि हाउ डिड यू थिंक ऑफ डूइंग एमबीए सो यंग यू नो. और घर वाले मुझे पीछे पाकिस्तान से कहेंगे इस उम्र में अब दूसरी डिग्री करनी. सो क्वाइट अ कंट्रास्ट फ्रॉम द टू कंट्रीज, यू नो. यस, कैन यू इमेजिन व्हाट अ कंट्रास्ट. यस. सो बट आई थिंक दैट एज आई लुक बैक दैट वाज अ गेम चेंजर. दैट वाज द बेस्ट डिसीजन आई कुड हैव मेड.
because if you're able to work in something you're passionate about, so I think there's nothing like that. So I did MBA Surrey University से मैंने किया, और उसके बाद लेकिन I was conscious कि मैंने medicine की भी है. अच्छा. So I didn't wanted to make use of both my degrees. So when I went back to Pakistan, I went to join एक बहुत बड़ी NGO है लाहौर में, फातिमा मेमोरियल के नाम से. वहाँ से फिर मैंने मैनेजमेंट का की पोजीशन ली और वहाँ से शुरू किया. सो आई मूव फ्रॉम क्लिनिकल प्रैक्टिस टू मैनेजमेंट साइड विद इन द हॉस्पिटल. अच्छा अच्छा. सो बट तो वो अच्छा लगा चेंज? बहुत अच्छा लगा. अच्छा. बहुत अच्छा लगा. हाँ. और क्योंकि वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में. आपके जो फंक्शंस आप देखते हैं हॉस्पिटल में, और आप ह्यूमन रिसोर्स देखते हैं, उनका फाइनेंस देखते हैं, उनकी रिसोर्स मोबिलाइजेशन एनजीओज की देखते हैं, कम्युनिकेशन देखते हैं. सो वही सारे लॉट ऑफ वर्क. सो लॉट ऑफ, और बहुत लोग ट्रेन नहीं है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में. तो वो एक बहुत बड़ा गैप था उस वक्त. यस यस, दैट लुक्स लवली. And I have the Royale with the salmon. Yeah, thank you. This looks so nice. Thank you so much. Thank you. थैंक यू. तो वो उस वक्त एक रेयर सी चीज़ भी थी कि डॉक्टर है और उसने MBA किया हुआ है. तो सेवरल हॉस्पिटल्स जैसे शौकत खानम से भी मुझे उन्होंने अप्रोच किया कि वी वुड वांट टू हैव यू इन द एडमिनिस्ट्रेशन. अब तो लोगों ने काफ़ी लोग करने लग गए हैं पब्लिक हेल्थ की साइड पे. बट आई लव्ड इट एंड बस वो किया. और उसके बाद देन आई हैड चिल्ड्रन. बच्चों के साथ साथ, लेकिन पाकिस्तान में ये कि वर्क लाइफ बैलेंस और आप अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के साथ घर को और बच्चों को इसलिए मैनेज कर लेते हैं. यू हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट. सो आई हैड अ लॉट ऑफ सपोर्ट ऑफ माय मदर, माय सिस्टर्स व्हेन दे वर नॉट मैरिड. वो बहुत बच्चों को देख लेती थी. You're welcome. Anything else? So we are fine. And that was the reason that I went back. क्योंकि यहाँ पे मुझे मैनेज करना मुश्किल लग रहा था. मुझे था कि I'll have to take a career break. Because I had a daughter and after 1.5 years I had twins. अच्छा, माशाल्लाह. So वो तो हुआ कि यहाँ तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी. यहाँ तो बहुत मुश्किल है. 2 को आगे पीछे पुश चेयर में डालना, एक को हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ के और फिर अपने काम भी करने और काम भी करने. हाँ, बहुत मुश्किल. उस टाइम पे कोई इतनी ज्यादा ऑनलाइन चीजें घर भी नहीं आती थी, तो हर चीज के लिए बच्चों को 2 सीटों में लेके जाना. You know that. So at that तो ज़माना ही और था ना. At that time, then we decided to go back to Pakistan and so that हम पाकिस्तान जाने से पहले जरा नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि ठंडा ना हो जाए. मुझे इसकी फिक्र है. अब है तो बहुत ही आप कोई मजे का. कॉफी नहीं ले रहे? चाय कॉफी नहीं, मुझे नहीं. अच्छा राफे, so if you look back, you would still do the same degree? Yeah, maybe, I think so. अच्छा, मेडिकल कॉलेज में, और मैं कहूँ मैंने मेडिसिन नहीं करनी. So everybody thought I was crazy, you know. Yeah. अब तो कितने लोग करते हैं, कितनी सारी फील्ड, हेल्थ इकोनॉमिक्स, हेल्थ पॉलिसी, सो मेनी डाइवर्स फील्ड्स, यू नो. लेकिन उस वक्त बस ये था कि आप मेडिसिन करें. उस वक्त इंजीनियरिंग वाज आल्सो नॉट कंसिडर्ड अ फील्ड फॉर गर्ल्स. सो अब तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं. So how are your work schedules like? सिर्फ 3 दिन. Much that's very nice. Yeah. So it is very convenient now. Which is nice, I feel, you know, that gradually we need to taper it off. Of course. To be able to smell the roses that we miss out on. Exactly. Is your royal nice? Very nice. Very nice. It's very different from, you know, the usual ones that they do. Yeah. But very nicely Because when I had it first time, I thought that it will be a croissant. No, we I didn't realize कि इसका गोल ऐसे होगा. Yeah, I think it's very they bake it different. I haven't seen this shape of croissants. Yeah, never. Very nicely. Yeah. और ये जो scrambled egg है, ये भी it's really nice.
परफेक्ट बना हुआ है। ठीक। तो तुमने जब बच्चे हम लोग का नाश्ता आ गया था, ब्रेकफास्ट हम लोग, आई थिंक यू हैव एंजॉयड द Oh, I loved it. इट्स I रियली loved नाइस, it. बड़ा Very, मजे very का था। nice. तो जिस तरह बताया कि बच्चों को लेकर तुम पाकिस्तान गई, क्योंकि जाहिर है वहाँ पर ज़्यादा बेहतर है, अपनी फैमिली होती है और बच्चों का लाइक एनवायरनमेंट उनको अच्छा मिल जाता है। तो किस तरह ट्विंस के साथ और एक बेटी के साथ किस तरह किया, कैसे कोप अप किया सारा? बस मेरा जाने का डिसीजन इसी वजह से था बिकॉज आई हैड अ डॉटर एंड देन जस्ट आफ्टर 1 year आई हैड ट्विंस। अच्छा अच्छा सो आई डिडंट वांटेड टू टेक अ करियर ब्रेक। मैंने फ्रेश MBA किया था अच्छा और वैसे भी यहाँ पे मैनेज करना बड़ा मुश्किल मुझे लग रहा था 3 बच्चों के साथ। और देन वी डिसाइडेड टू गो बैक। आपको पता है पाकिस्तान में फैमिली सपोर्ट हेल्प मिल जाती है, सो फॉर वर्किंग वुमेन आई फील दैट इट्स अ लॉट ईजियर। And I think it was a good decision at that time, and I had a lot of support of my mother. My sister was not married, so they were taking care of the kids when I was working. Or so I ended up going back to work even with 3 young kids. अच्छा। And फिर ये था कि अब लंदन आना जाना लगा रहता था, और फिर we came back to London when the kids started their schools and universities. अच्छा। तो फिर बच्चे यहाँ आ गए और 10-12 साल से फिर they went to university here. One of my daughters, she went to Imperial College, she did her engineering. अच्छा। And the other one went to Warwick, she did her masters, उसने किया human resource में। अच्छा। और बस माशाल्लाह, that is the achievement, isn't it? अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपना भी करियर मेरा चलता रहा और बच्चे भी और क्या अपनी प्रोफेशनल जर्नी पे। क्योंकि ऐसे होता है कि यहाँ पर जो ऑलरेडी रहते हैं लोग, उनको भी एक मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि बच्चों को किस तरह इस मुल्क में रह के भी आप पढ़ा भी सकते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटीज में डाल सकते हैं। women have this ability of multitasking. Oh yes, of course. So यहाँ पे ज़रा multitasking ज़्यादा होती है क्योंकि आपके पास इतनी सपोर्ट नहीं होती, तो आपको बहुत कुछ गाड़ी पे जाना, ग्रोसरीज करना, बच्चों को देखना, स्कूल, ये वो सब, everything you have to do yourself, you know. You can't depend on anybody. कई दफ़ा अच्छे कोई neighbors या कोई friend, but that's very occasional, you know. हाँ वो तो खैर। लेकिन पाकिस्तान में we still have a lot of support. So from the family, from neighbors, friends, and even we can hire help. Home help hire कर लेते हैं, तो उसकी वजह से it's a lot easier. पाकिस्तान में भी, मिडिल ईस्ट भी लोग जब मूव करते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं, प्रोफेशनल, तो इसी वजह से कि they get a lot of better support while they are working. यहाँ पे challenging है, definitely challenging है, but it's still doable. Not difficult. It's still doable. You did it, of course. So I did it, so anybody can do it. Anybody can do it. और ये वही बात होती है कि किस तरह आप बच्चों को लेकर, एक्चुअली क्या होता है कि लोग समझते हैं कि बच्चों को हम अगर सर पे नहीं रहेंगे तो शायद बच्चा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन आप इस तरह का डिसिप्लिन करें बच्चों को कि अगर आप काम पे भी बाहर निकले हो तो पीछे से बच्चा अपना होमवर्क तो करे। बिल्कुल, that's अब ऐसा तो ना हो ना, that's how you जैसे भी आप उनकी brought up करते हैं, how much you let them, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, मुझे शबनम ऐसे लगता है कि जिस तरह लोग बच्चों की सुनने लग गए हैं, कुछ भी बात होती है तो वो फिर बच्चों की ज़्यादा सुनते हैं कि हमारे बच्चे ये कह रहे हैं, तो वो उनके पेरेंट्स बन जाते हैं और पेरेंट्स जो है वो बच्चे बन जाते हैं। ये शिफ्ट तो है, ये शिफ्ट तो है फ्रॉम आवर टाइम्स टू दिस टाइम, बिकॉज आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रीडम of expression that they have, which perhaps we didn't have it. Like I did my first degree in medicine because my parents said कि नंबर भी आ गए, दाखला भी हो गया, और क्या चाहिए, और मैं भी चुप करके मैंने कर लिया। फिर जब हम we used to get married, तो they had a lot of influence on our the decision making, and we would accept a lot of things, thinking that they're elders for respect and thinking also that they know better,
लेकिन अब बच्चों को बहुत पता है, हमसे भी कुछ चीज़ों में ज़्यादा पता है. हाँ. अब विद यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ एवोल्यूशन. तो इसका तो हम लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि बच्चों को कुछ पता है. बात कर रहे थे कि बहुत से लोग दे फाइंड इट डिफिकल्ट नाउ विद चिल्ड्रन, यू नो. एंड आई पर्सनली थिंक के for working women young, when they have children, because when they get married they have to adjust to a very different context. घर में फ़र्क सपोर्ट होती है, आपकी शादी होती है, एक फ़र्क किस्म की सपोर्ट है. बिल्कुल. और वो बिल्ड करनी होती है आपने वो सपोर्ट. फिर बच्चे होते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा हो जाती है. आप काम भी करना चाह रहे होते हैं. लेकिन at all those times I think it's very important that we build up our support system. And we organize ourselves to be able to do all these things. Of course. And I think उस टाइम पे बहुत से लोग एकदम से हाथ पैर छोड़ देते हैं कि नहीं ये सब नहीं हो सकेगा, अभी बच्चे छोटे हैं, इन लॉज का प्रेशर है, हस्बैंड की डिमांड्स हैं, which are always there and we all confront those. But I think all of us who moved on was because we were able to manage do a lot that. of things. At So a time. उसमें किस तरह से आपने अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, आपने किस तरह अपने टाइम को फोकस किया, अपने अपने आसपास की चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, so that you are able to not compromise on the essentials, but was able to move with your career as well as not raise your children the way you wanted to raise them. Oh really. yes, of course. So it's doable, Oh. but it needs a lot of resilience. Oh yes, yes. Of Not course. giving up. Not giving up. That's the most important thing. और माँ जो है उसको strongly रोल प्ले करना होता है. ऐसे बाप तो बेचारा अपने जॉब पे जाता है, वो तो खुद चाहता है कि मुझे भी बच्चा बना के ही मेरी खिदमत करो या मेरे लिए बहुत करो दफा काम. आपको ये भी सुनने को मिलता है कि ये तुम्हारा इंटरेस्ट है भाई, यू आर डूइंग इट, और if क्या? you can't do it just leave Just it. leave it. So if you leave it, I think the biggest loss is yours. Ours, because और you क्या? just हाँ, pull और yourself क्या? out from और फिर ये कि your you career have line. studied a lot. Yeah, अपनी सारी yeah. जिंदगी आपने पढ़ाई में गुजार दी, फिर ये थोड़ी है ना कि घर में बस आप और फिर वो गैप आ जाता है. एंड आई रिमेंबर जब बच्चे छोटे थे एंड आई started working and I used to think I should have taken a longer career break and moved on to working in a way that ये तब तक स्कूल में जाने शुरू हो जाते. लेकिन मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि आपने जब भी जाना है और जब भी काम शुरू करना है, बच्चे किसी भी स्टेज पे हो, हर स्टेज पे बच्चों को आपकी रिक्वायरमेंट है. हाँ, और क्या. और आपने जब भी काम पे जाना है आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज ही करना है. हाँ, ये तो जब है. बच्चे बड़े हो जाते होती हैं लेकिन रिक्वायरमेंट्स होती हैं. हाँ, सब बिल्कुल होती हैं. और इसमें कोई शक नहीं है कि हर एक टाइम में होती. मैंने यहाँ पर तो हम लोगों ने इतनी बातें कर ली कि बच्चों को कैसे करना है. जो असल बात है वो ये करनी है कि you were rubbing shoulders with the royals, weren't you? I was invited and at the Windsor Castle. अच्छा. A great honor, alhamdulillah. And I did my MBA, as I said. मैंने Surrey University से किया. A long time back in '95, before my daughter was born. And in 2021, I was awarded the alumni of the year. And there are a lot of people in that. I think they have over 135,000 alumni who contested and और उसमें लेना, it's a big achievement. Alhamdulillah. I could never have thought of it at the time that I was doing it. You're just, I think, and all humble. the challenges around, but alhamdulillah, it was a great achievement, a great honor for my country, for the women of my country, because I was the first Pakistani women to have got it. और फिर अभी जब उनकी फंड रेजिंग, आई कीप माई सेल्फ इन्वॉल्व इन दैट. उनकी फंड रेजिंग कैंपेन थी. दे वर ट्राइंग टू रेज फंड्स फॉर स्कॉलरशिप्स टू अलाउ एक्सेस टू स्टूडेंट्स हु आर अदरवाइज अनएबल टू. Okay, these scholarships are for the foreign countries, like for all underdeveloped countries. हाँ जी, for all, those, so that everybody has an equal access. Right. So I supported that as well. So I was invited as the distinguished alumni by the Duke to come to Windsor Castle, where he had invited all the philanthropists who had contributed to the fundraising, and I made the keynote address there. Oh, अच्छा. So it was, alhamdulillah, a great experience and अच्छा लगा. और आप
आपको जब आप खड़े होते हैं ऐसे फोरम्स पे हाँ। तो आपको पूरी अपनी जर्नी याद आती है, कि अपने आपने- चैलेंजेस याद आते और हैं कि आप क्या। कभी भी सोच नहीं सकते कि आप यहाँ तक पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आप मुख्तलिफ कंट्री में होते हो, डिफरेंट कंट्री, और अपनी कंट्री के बारे में सोचते हो कि देखो मैं पाकिस्तान से आई हूँ या किसी भी मुल्क से, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं से भी, तो मैं उस अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो दैट्स बहुत अच्छी फीलिंग है, प्राउड मोमेंट, बहुत अच्छी फीलिंग है। अभी एक और फोरम है अभी यूएस में, फिलाडेल्फिया में, TUFH, अच्छा, और उनकी एनुअल कॉन्फ्रेंस है एंड दे हैव इनवाइटेड मी टू डिलीवर अ की नोट देयर। अच्छा, And I think that conference has been happening for 40 years and it's the first time a Pakistani has been asked to do the keynote. ओके, And बस ऐसे जब भी होता है तो अपना मुल्क, और आपको लगता है कि ऑफ कोर्स, मुझे कभी ये नहीं लगता कि whenever इस तरह की कोई ओकेजन हो कि उन्होंने मुझे कहा है, मुझे ऐसे लगता है उन्होंने पाकिस्तान को कहा है। और जब आप वहाँ खड़े होते हैं तो आपको होता है कि my stakes are high because I'm representing my country. Oh yes, of course, इसमें कोई शक So it's नहीं a है। great feeling। और बट शबनम, इसमें कोई शक नहीं है कि यू हैव अचीव माशाल्लाह इतना कुछ, और इतना पढ़ाई करी पहले, फिर उसके बाद अपनी फैमिली मुकम्मल की, उनको पढ़ाया बच्चों को, और बेस्ट स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया, फिर उसके बाद अपनी अचीवमेंट, और फिर वही बात कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो यू शुड गेट द क्रेडिट फॉर दैट कि माशाल्लाह। वैसे ही आप ज़रा थोड़ी हम्बल सी हैं तो इतना पता नहीं लगता आपका। अभी आपने बात की ना, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि क्योंकि मेरे बच्चों में गैप नहीं था, तो ऑल 3 of them graduated together in 2019। तीनों की ग्रेजुएशन हुई। ज़ारा ने मास्टर्स किया और दूसरे दोनों ने बैचलर्स, ट्विंस ने किया। और 2019 was the year that I went to university. अच्छा, All of them graduated and I got selected by the Harvard University, and as 4 women across the globe, they had started a women leadership program. Okay. So I was selected for that fellowship and I went back to Wow, university. what an achievement, और हाँ? बच्चों ने मुझे कहना शुरू किया, मामा आप पढ़ रही हैं कि नहीं पढ़ रही हैं? अच्छा, वो मामा पे सख्ती कर रहे हैं। So I mean, तो मामा को फ्रेंड्स के साथ मिलने पे पाबंदी करते होंगे कि मामा अभी नहीं, अभी खुश होते आपके। हैं। हाँ, वो बहुत खुश होते हैं। हाँ। और they because शुरू में आप when we are raising children we don't get time to travel, we don't get time to spend, पैसे भी कम होते थे और टाइम भी कम होता था। हाँ। So अब अगर निकलो जाओ तो उनको भी अच्छा लगता है। हाँ, of और course, और क्या। अब तो आई थिंक दे आर मोर लाइक फ्रेंड्स एंड हु इवन टेल यू कि आप गलत कर रही हैं, आप अच्छा, ख्याल नहीं रख रही हैं अपना, और आप ज़्यादा रिलैक्स किया करें, काम कम किया करें, हाँ। जैसे हम उनको कहते हाँ थे। बिल्कुल, और क्या। So, अब माशाल्लाह yeah. बच्चे इस काबिल हो गए हैं कि वो आपको Yeah. कह सकते हैं कि Absolutely. मम्मी डैडी अपना ख्याल रखें, और इसी तरह ही, हाँ, इसी तरह ही। ही, रोज मशीन की आहिस्ता तरह नहीं आहिस्ता चलें। आप शिफ्ट होते हुए देखते हैं। हाँ, वही है ना कि yeah. एक मशीन की तरह चलते हैं जब आप यंग होते हैं, है ना? ऐसे ही है बिल्कुल। हाँ, फिर उसके बाद नेचुरली माशाल्लाह अगर बच्चे आपके हों और फिर वो आपका इतना ख्याल रखें तो दैट्स अ ब्लेसिंग। That's a blessing, हाँ. absolutely. And I think इसमें भी there are lots of values and practices that they develop as they see them. हाँ, And that's, I think, for any parents, that's the best thing they can give to their children. That उनके घर में क्या values हैं जिनको हाँ. that they abide by, वो किस तरह से अपने बड़ों का ख्याल रख रहे हैं। तभी बच्चे, अब मैं देखती हूँ, like my father-in-law, अल्लाह मियां उनको जन्नत नसीब करे, he was a very fine person. When he was ill, I'm also a doctor, so I requested him कि आप मेरे पास रहें और we would be able to take care of you. अच्छा, So he stayed with me towards the end, and the children saw that how an you take elderly care, is being taken care of. और जिस वक्त अभी इसी साल my husband suffered a stroke, तो उस वक्त मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसे लगीं कि जैसे दोबारा से मैंने होते देखी, जो what my husband used to do for his father, they were doing exactly the same or even more for their father, And I don't remember ever sitting with them and teaching them कि आप कुछ ऐसा हो तो ऐसे करना है। टीच नहीं करना होता, वो देख के बच्चा सीखता है। और so मुझे उस वक्त ये हुआ कि वाकई जो तो चीज़ मतलब हम लोग जो वैल्यूज डालते हैं बच्चों के, एब्सोल्युटली, तो या वो देखते हैं तो वो फिर उस वक्त नहीं हमें फील होता कि
ऐसा कुछ होगा, लेकिन it really, that's I think the best thing you can give to your children, you know, investing in the values that you would want to see them practicing. हाँ, So that's really important, commendable. very हाँ, important. बहुत और वही बात आ जाती है दोबारा, फिर हम यही बात करते हैं कि औरत जो है वो उसका मुकाम बड़ा ऊंचा है, इसमें कोई शक नहीं है। खैर मर्दों का भी है, हम क्यों उनको ऐसे नहीं, I कहें, think, उनका भी है साथ साथ। I don't think if I look at my you know, wherever I am, men have played a very important role, हाँ, like of my course. father, because हम 3 बहनें थी हाँ। और एक भाई था, और आपको पता है लड़कों को, और एक ही हो और लड़का हो, हाँ। लेकिन my father, I cannot think of anything that he did for him that he didn't do for us. हाँ। So जब हमने गाड़ी उन्होंने हमें चलानी सिखाई, हमें बाहर के ट्रिप्स पे लेके गए, भाई ने भी मेडिकल कॉलेज में, हम भी अच्छे स्कूल्स में पढ़ा, कॉलेजेस में गए, सो वी वर एब्सोल्युटली इक्वल, यू नो, द वे वी वर रेज्ड। हाँ। इसी तरह, so that gave you a lot of confidence, and you know, you were able to actualize your potential as much as your brother. हाँ। So I give a lot of credit to my father for that, really. और इसी तरह से when I got married and my husband, when I came here after my marriage, तो he was the one, मैंने MBA शुरू कर दिया, it was a very expensive degree, और वो जो कमा रहा था मेरी फीस दे रहा था, of course, so he did support me वही बात throughout. है कि हस्बैंड या बाप या भाई उसकी सपोर्ट के बगैर बिल्कुल, मैं ट्रैवल करती थी, मेरे बच्चे छोटे थे, अब भी मैं अगर करूँ तो he's there and he's taking, you know, care of the house in my absence, and his presence is there, and अगर वो ना होता तो I wouldn't have been able to, you know, मैं उस peace of mind के साथ काम नहीं कर सकती थी, impossible so है। I think उस companionship को और उसकी strength जो है ना is very important for women, and I think it's vice versa even for men who are able to do well in their careers, have a good support and a good family life, so that they are not, you know, वो काम पे जब होते हैं तो they are not worried about कि बहुत सारी परेशानियों से दूर होते हैं, और क्या, and they can focus on their work. But औरतों के लिए ज़्यादा important है, because औरतों से वो expectation नहीं होती, and उनकी वो responsibilities रहती हैं जो घर की responsibilities हैं। बल्कि शबनम, जिस तरह मैं अक्सर मुलाकात करती थी जब तुम पाकिस्तान से आई हो, तो हम फ्रेंड्स मिल बैठते थे, तो फिर हमें पता लगता था कि नहीं शबनम तो फ्लाई कर रही कहीं जा रही है, फिर आती थी नहीं शबनम तो फ्लाई करके कहीं जा रही है। तो ये जो ट्रैवलिंग है इसमें एंजॉय करते हो या? पहले चैलेंजिंग होती थी जब बच्चे छोटे थे, तो फिर हम कोऑर्डिनेट करते थे कि मैंने ट्रैवल करना है अगर, तो जहाँ से वुड नॉट डू इट, और अगर उन्होंने करना है तो आई वुड ट्राई कि मैं ना करूं, पर देयर वर टाइम्स कि हम दोनों ने ट्रैवल करना होता था। फिर अम्मी, you know, she would come over, stay with the kids, so you had to organize, you know, yourself, so वो ज़रा challenging लगता था उस टाइम पे तो काफ़ी, लेकिन अब ये कि माशाल्लाह the kids have on, you know, अपना jobs कर रहे हैं, अब वो वाली requirement नहीं है, तो अब traveling is fun, अब ट्रैवलिंग इज फन बिकॉज आपके ऊपर थोड़ा पीछे का स्ट्रेस कम होता है, घर का, बच्चों का, और बहुत टाइम ऐसा होता है कि पहले मैं इतना टाइम नहीं होता था कि मैं आई वुड एक्सटेंड माई ट्रैवल, सो आई वुड जस्ट गो डू द कॉन्फ्रेंस कम बैक। सो अब इस साल मैंने 2-3 दफ़ा व्हेनेवर पॉसिबल वी डिड प्लान कि आई वुड गो, जैसे वी वेंट टू बुडापेस्ट, सो वी सच अ ब्यूटीफुल सिटी इट इज़। हाँ, बुडापेस्ट कैसी लगी? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो वहाँ पे भी लेक्चर देने गई थी? वहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी और वहाँ पे मेरी टॉक थी, सो I delivered the talk, फिर my daughters came over, so we had a holiday there. अच्छा, क्योंकि कहते हैं बुडापेस्ट यूरोप का पेरिस है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मेरी बेटी पढ़ी है वहाँ पे। अच्छा, तो वो बताती थी, उसके सबर्ब में पढ़ी थी, तो वो बुडापेस्ट छुट्टी जिस तरह सैटरडे संडे कभी फ्रेंड्स वगैरह सारे जाते थे, तो वो तस्वीरें भेजती थी। बहुत खूबसूरत, इतना खूबसूरत वो जगह है। तो मैं वैसे गई नहीं, विजिट नहीं किया, आई होप कि बहुत खूबसूरत। और बहुत जो अभी रिसेंट जो मेरा एक ट्रिप था वो इथियोपिया का था। अच्छा अच्छा। और आई वाज सो सरप्राइज्ड व्हेन आई वेंट देयर, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट टू बी सो डेवलप्ड।
अच्छा, क्योंकि And- हमेशा सुनते हैं इथियोपिया का तो कि हाँ, बड़ा एक अंडर image, डेवलप्ड है और बड़ा बहुत उन्होंने अपने हाँ, आप को इतना मुश्किल अपलिफ्ट वक्त किया उन पे गुजरा हुआ और है। इतनी अच्छे उनके आई मीन दे हैव द headquarters for so many of the development agencies. अच्छा अच्छा And they've really developed themselves. The women are, young women are so vibrant, so अच्छा। confident. हम्म, So I was very impressed, very Okay. impressed. वही जब आप जाके देखते हैं ना तो हाँ। आपकी perceptions change हो वरना जाती तो हैं. कहते हैं कि बच्चे बहुत पैदा होते हैं वहाँ पे और फिर वहाँ पे बड़ी मुश्किल होती है और बस ये challenges है, भी वो जिस है। तरह हमने पहले बात की, हर मुल्क के अपने challenges भी हाँ, हैं. नहीं लेकिन जिस तरह और आप बता अपने- रहे हो कि वो डेवलप हो रहे हैं और इससे It was an eye-opening तो, experience हाँ, for me. तो हैरानी की बात है। Beautiful. हम्म, One could easily go for the next holiday there. अच्छा, हाँ. इट्स दैट प्लेस। In fact, the Ethiopian airline that I took is one of the very good ones, you know. आई नेवर and हर्ड ऑफ इथियोपियन एयरलाइन। That was my first time. जब मैं जा रही थी, लेकिन I was impressed. अच्छा, हाँ, बस वो perceptions change हो जाती हैं जब आप experience हाँ, करते हैं. जब आप खुद जाओ ना फिर आपको पता लगता है कि नहीं भाई उनकी एयरलाइन भी है, ऐसे ही यही नहीं है कि वो घोड़े पे टांगे पे चलते हैं। ऐसे ही है, हाँ, ऐसा ऐसे ही कुछ है. नहीं है। और कौन कौन से मुल्क में गई? एक जो मेरा बहुत एडवेंचरस एक्सपीरियंस था वो 2 साल पहले there was a conference and I was invited to speak and I went to Liberia. लाइबेरिया, अच्छा अच्छा So that was quite an experience. अच्छा। ये भी नहीं पता था कहाँ है, कितनी दूर है. और मैंने मैप पे मुझे ढूंढा सिर्फ- होगा कि हाँ, किधर नहीं, मैंने तो कितना ढूंढा भी नहीं. बस ये एक्साइटमेंट थी बिकॉज आई हैड नॉट सीन अफ्रीका. अच्छा अच्छा। तो अफ्रीका की कोई कॉन्फ्रेंस होती थी तो आई वुड से कि ठीक है. हाँ, सो आई हैड बीन टू रुवांडा. रुवांडा तो रुवांडा तो- बहुत तो- जबरदस्त हाँ। उन्होंने कर लिया कि गाली में. हम्म। लेकिन लाइबेरिया वाज एन एक्सपीरियंस. अच्छा अच्छा। और क्या क्या बस महसूस वहाँ किया? जाके बहुत एक अच्छी भी फीलिंग थी इस तरह से कि आपको अपना मुल्क की कदर आती है. कुछ हाँ। सिस्टम्स हमने ऐसे बनाए हैं. हम्म, आपको जब हम अपने मुल्क में होते हैं तो वी जस्ट लुक एट द चैलेंजेस. हाँ, लेकिन जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपने कितनी चीज़ें अपनी ठीक भी कर ली हैं हम्म, जो अभी वहाँ होनी हाँ। रहती हैं. बट वहाँ पे भी जब आप देखते हैं तो उन लोगों की, औरतों की ख़ास तौर पे रेजिलियंस टू द चैलेंजेस दैट दे कन्फ्रंट. हाँ, So that is also quite remarkable, अच्छा अच्छा। but quite eye-opening Oh, experience. अच्छा Yes, अच्छा। That's excellent. and the वही है। best place was Iceland. ओ खुश, आइसलैंड में भी तो होया ही हो। आइसलैंड में तो आइसलैंड ठंड मुझे ने पता मार है क्यों दिया होगा। फैसिनेट करता था. आइसलैंड मुझे फैसिनेट करता था क्योंकि जेंडर पैरिटी पे ना हाँ। एक रिपोर्ट निकलती है एनुअली हम्म, और उसमें मैं उसको फॉलो करती थी अपने इंटरेस्ट के लिए. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है और 16 इंडिकेटर्स हैं उसके अगेंस्ट रैंक करता है और फिर आपकी स्कोरिंग होती है. हम्म, और जब वो रिपोर्ट निकलती थी तो आइसलैंड यूज्ड टू बी कंसिस्टेंटली नंबर 1. अच्छा यानी औरतें और आदमियों की बराबरी में नंबर 1. अच्छा। एंड पाकिस्तान कंसिस्टेंटली डोंट टेल मी। एंड पे कंसिस्टेंटली. तो अब अच्छा। 12 साल हो गए उस रिपोर्ट को निकलते हुए. अच्छा। तो मुझे बड़ा फैसिनेट करता था कि आइसलैंड में आखिर क्या है क्या कि वो हर वक्त टॉप पे है। सो वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस थी और मुझे इनविटेशन आया और आई जस्ट तुमने कहा मैंने तो जाना है। हैव टू गो, यू नो, हाँ। नॉट थिंकिंग कि आइसलैंड इटसेल्फ इज सच अ ब्यूटीफुल नहीं वैसे ही के सो जस्ट फॉर यू पता नो करूँ, हाँ हाँ। कि आखिर मतलब क्या. हम्म, सो आई वेंट देयर एंड आई थिंक जाहिर है वो तो सब कुछ जो मेरा था इंटरेस्ट एरिया वो तो वहाँ पे एक्सप्लोर किया ही. लेकिन द लैंडस्केप, द ज्योग्राफी एंड अच्छा, यू नो everything आइसलैंड was इज amazing. एन अच्छा, एक्सपीरियंस. अच्छा। सो अल्लाह मियाँ की दुनिया बड़ी खूबसूरत है हाँ। और बड़ी मुख्तलिफ है और जहाँ चले जाओ हाँ, आप उसकी ब्यूटी देखते हैं और उसकी डाइवर्सिटी देखते हैं. और सो एक्सीलेंट। मज़ा आ गया आपकी बातें सुन सुन के। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। इतनी अच्छी स्टार्ट ऑफ द वीकेंड है मेरे लिए. और क्या? Saturday morning, beautiful weather, such a Beautiful. beautiful place to have your breakfast, Yes. and a great friend to talk to. What I else know. could have I asked for? Exactly, that's what I was thinking. मैंने कहा शबनम is such a like beautiful person that you know we should दोस्त talk. दोस्त देखते हैं इस नजर से हाँ। तो हम ब्यूटीफुल हो जाते हैं. नहीं नहीं माशाल्लाह you are. तो मैंने कहा पता तो करें शबनम की इतनी बातें सुनी हुई हैं कि शबनम तो माशाल्लाह हाई फ्लायर. तो आई एम सो हैप्पी कि आज मुझे थोड़ा बहुत और ज़्यादा खुल के पता चला. वैसे तो पता ही था
लेकिन मज़ा आया आज, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा यू लगा। आर राइट कि सैटरडे का दिन है और आज मौसम भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। एकदम ठंडा मीठा। अब आपने कहीं जाना भी है? आज मैंने एक दोस्त है उसकी तरफ उनकी जाना तरफ है, जाना है। so बस वही है, लगे हैं। बहुत सी चीजों में साथ लेके। है ना, हाँ। सैटरडे संडे का तो यही इसी है, तरह ही। कहीं कुछ हो रहा है, हाँ। कहीं कुछ हो रहा है। I think Saturday, Sunday is an important day, particularly for working people. Oh yes, of course. That They look refuels forward us. के, that हाँ, refuels us for the week for the ahead. next, of course, ऐसे ही week. है, हाँ, ऐसे ही है। ओके, फिर हम चलते हैं। चलें और जी। हमने कॉफी और पीनी है? नहीं, thank you. I think I had the most lovely अच्छा। cup of ओह, coffee in the कैपेचिनो था, morning. क्या yeah. था? मेरा लाटे था। लाटे, अच्छा। मुझे इतना कॉफी से रगबत नहीं है, अच्छा। लगाव नहीं है, अच्छा, लेकिन मुझे अब आदत हो गई है, एक अच्छा। कप दिन का ना पीऊं तो अच्छा, होता है कि नहीं एक कप कुछ पीना। कमी है। हाँ, अच्छा, पहले नहीं थी, अब होगी।